Oedipus Rex summary. This was predicted that King Lois would be killed by his own son. यहाँ पे predicated लिखा हुआ, predicted लिखते हैं यहाँ पे ना, कि ये predicted था कि King Lois जो है उसको उसका बेटा जो कैस्टा से पैदा होगा वो उसको किल करेगा. King Lois made all possible effort to save himself. He tried to prevent it by handing him over to trustworthy servant when he was just an infant with chains in his feet, with the instruction that the child be exposed on Mount Catherion and allowed to perish. ये वही माउंट कैथेरियन है. माउंट कैथेरियन के एक साइड पे थीबस सिटी है और दूसरी साइड पे कॉरिंथ है, ठीक है, और दरमियान में माउंट कैथेरियन है. और वो क्या करता है, वो चाइल्ड को माउंट कैथेरियन पे अबंडन होने के लिए छोड़ देता है. एंड द सर्वेंट took pity on the infant and gave it to an other shepherd of Corinth, who passed him on to king of Corinth. और शेफर्ड जो होता है of Corinth वो उसको के जो है मतलब वो एक शेफर्ड को दे देता है, एक और शेफर्ड को दे देता है और वो आगे किंग ऑफ कॉरिंथ को दे देता है जिसके बच्चे नहीं होते. द चाइल्ड ग्रू अप एज द सन ऑफ पॉलिबस एंड मीरो, द किंग एंड क्वीन ऑफ कॉरिंथ. एज ही ग्रू अप he was taunted by some people that he was not the son of Polybus and Miro. जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जवान हो जाता है, तो उसको कोई एक शराबी बंदा होता है उसके पास से जा रहा होता है और उसका वो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो पॉलिबस और मीरोप के बेटे हो ही नहीं. He went to Apollo's oracle to know the identity of his parents. उसको वो अपोलोस ओरेकल के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि उसके पेरेंट्स की आइडेंटिटी क्या है. He was told that he would kill his father and marry his own mother, and would beget children by her. और उसको ओरेकल ये बताता है कि तुम अपने ही फादर को किल करोगे, अपनी माँ से शादी करोगे और उससे तुम्हारे बच्चे भी होंगे. टेरिफाइड बाय अपोलोस ओरेकल, Oedipus decided to leave the place. जैसे ही वो ओरेकल उसको ये प्रेडिक्शन देता तो वो इतना डर जाता है कि Oedipus जो है वो कहता है मैं ये कोरिंथ छोड़ के चला जाऊंगा. In his pursuit to escape, one day he fought with a man and killed him without knowing his identity. The fact is that he killed his own true father. King Lois is ignorant. After some time, as he was entering the city Thebes, he was confronted with a spring, who could not spare the new one until he gave the correct answer to her riddle. Oedipus gave her satisfactory answer and defeated her. The citizens were overjoyed and made him king of this kingdom, while Jocasta was offered as a wife to him. Life went on smoothly for a considerable period, but one day he was told by a group of citizens informing him about the calamity that had befallen on the city as the people were dying in the large number because of plague. They sought relief and requested the king to initiate redressal measure to mitigate the suffering of the people. He told them that Creon, his brother-in-law, was already on his way to Delphi for guidance and help. When Creon returned, he informed him of Delphi oracle, which asked the king to find out the murderer of King Lois and banish him from the kingdom as only the remedy which can save the people from his curse. Oedipus summons Tiresias. अब क्या होता है कि जिंदगी उनकी बड़े आराम से जा रही होती है और उसको कहा जाता है he was told by good group of citizen informing him कि उनके सिटी में एक प्लेग हो गई है. और वो जो है उसको मतलब उसकी तरफ लोग इसलिए आते हैं कि देखो तुमने हमें पहले भी स्प्रिंग से बचाया था तो अभी भी हमें इस बला से बचाओ, इस प्लेग से बचा दो. तो वो ऑलरेडी क्रियोन को भेज चुका होता है. क्रियोन वापस आता है और उसको बताता है कि ओरेकल ने कहा है कि तुम किंग लॉयस के मर्डरर को ढूंढो और उसको जो है थीबस से निकाल दो तो प्लेग भी खत्म हो जाएगी. तो जो कि Oedipus जो है वो टेरिसियस को बुलाता है जो कि एक वेल नोन प्रॉफिट फॉर कंसल्टेशन एंड हेल्प. First, he refused to share knowledge with him about the identity of murderer of Lois. पहले तो वो जो है किंग लॉयस की के मर्डरर की आइडेंटिटी को बताने से रिफ्यूज कर देता है. बट सून दे फेल आउट एंड एक्सचेंज हॉट वर्ड्स. लेकिन जल्दी उन दोनों में थोड़ा सा इख्तलाफ हो जाता है और हॉट एक्सचेंज जो है वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं. हर्ड एक्यूजेशंस अगेंस्ट ईच अदर. दोनों एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं. Creon joins him safer and he too was harshly treated by King Oedipus. Creon जो है उसको उस पे भी Oedipus जो है गुस्से में बहुत ज्यादा
इल्जाम लगा देता है। जो कैस्टा इंटरवेन एंड thus क्रियोन वाज सेव्ड फ्रॉम द wrath ऑफ द किंग। जो कैस्टा जो कि उसकी बहन होती है क्रियोन की और मलका होती है, वो जो है उसको किंग wrath ऑफ द किंग से बचा लेती है। मीनवाइल कोरिंथियन मैसेंजर कम्स एंड इन्फॉर्म द क्वीन। मीनवाइल वो जो कोरिंथियन मैसेंजर है वो आता है और वो इन्फॉर्म करता है क्वीन को कि किंग पॉलिबस जो है वो मर चुका है। इडिपस इज रिकॉल्ड टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किंगशिप देयर। और इडिपस को वहां पे याद किया जा रहा है ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किंगशिप वहां पे निभाए, क्योंकि बाप के बाद बेटे ने ही जो है वो किंग बनना होता है। ड्यूरिंग हिज कन्वर्सेशन द मैसेंजर रिवील्ड दैट इडिपस वाज नॉट द सन ऑफ पॉलिबस। और अपनी इसी कन्वर्सेशन के दौरान वो ये रिवील कर देता है कि इडिपस तो पॉलिबस का बेटा है ही नहीं, and was handed over to him by Theban shepherd when Oedipus was just an infant. This revelation made Queen Jocasta sad and unhappy. She left the place in depressed mood. The arrival of Theban shepherd leads to final discovery. The Theban shepherd tried to keep back the information as it would have stunning effect on Oedipus. But Oedipus is adamant and forces him to speak out the truth and not to conceal anything from the king. लेकिन इडिपस जो है वो बहुत एडमेंट होता है और फोर्स करता है उसको टू स्पीक आउट द ट्रुथ, कि वो जो है सच को सही सही बताए, बट नॉट टू कंसील एनीथिंग फ्रॉम द किंग, लेकिन किंग से वो कुछ ना छुपाए। बट व्हेन द ट्रुथ कम आउट दैट इट वाज इडिपस हिमसेल्फ, जब ये पता चलता है कि वो तो भाई इडिपस खुद था, तो it was Oedipus, the murderer of his own father, who was also married her own mother and begot children by her, and he was struck with horror and shame. जब उसको खुद पता चलता है कि जब ट्रूथ उसके सामने आता है तो कि वो खुद से उसके अपने फादर का मर्डरर है और उसने खुद ही अपनी माँ से शादी किया और उसके बच्चे भी हैं, तो वो एक हॉरर और शेम में पड़ जाता है। The realization that the words of oracles have proved true and he committed crime in ignorance was unbearable shock for him. अब वो जो ओरेकल के वर्ड्स होते हैं वो तो ट्रू होते हैं, लेकिन उसका जो कमिटेड क्राइम होता है इन इग्नोरेंस वो अनबेरेबल होता है उसके लिए और शॉक्ड होता है। This moment marks the climax of the play. Oedipus tried utmost to prevent the fulfill of the oracle prophecy, but he failed. एडिपस अपनी पूरी कोशिश करता है कि ये ओरेकल की जो प्रोफेसी है वो जो है फुलफिल ना हो, लेकिन वो फेल हो जाता है, यानी कि किस्मत के हाथों इंसान जो है वो मजबूर है। Circumstances and his own actions and temperament was responsible for it. So the tragedy lies in the discovery of guilt, not the guilt itself, as it was committed unknowingly and unwillingly long time ago. इसलिए ट्रेजेडी जो है वो डिस्कवरी ऑफ गिल्ट में थी, गिल्ट इटसेल्फ में नहीं थी। यानी कि अगर उसको ये पता चलता ही ना तो जो कैस्टा और इडिपस तो आराम से अपनी हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे, ना पता चलता, ना ये ट्रेजेडी होती, ना जो कैस्टा जो है वो जो है अपने आप को फांसी लटकाती और ना ही इडिपस जो है वो अपनी आंखें जो है वो ब्लाइंड करता। Then comes the messenger from the palace with the news that Jocasta has hanged herself by a rope. He also tells that the royal house is overwhelmed by calamity, death, ruins, tears, and shame. The conversation of Porus with Oedipus is also extremely moving. Oedipus speaks of his physical and mental agony. He rushes to the palace and unrobes the queen and inflicts such blindness on him by pins. और वो जो है उसकी हेयर पिन्स उतारता है और वो अपनी आंखों में घोंप लेता है। He calls for his two daughters and appeals Creon to look after them properly. और वो जो है अपनी दोनों बेटियों को अपने सामने बुलाता है और वो क्रियोन को कहता है कि तुम इनकी देखभाल करना, and request him to banish him from the kingdom immediately. और वो क्रियोन को कहता है कि अब तुम बादशाह हो तो तुम मुझे यहाँ से अब निकाल दो। In the closing scene, the blind Oedipus recovers himself from deep shock and is extremely ashamed of his parricide and incestuous experience. पैरिसाइड कहते हैं बाप को किल करना और इंसेस्ट्रस एक्सपीरियंस यानी कि मदर से शादी। Yet he shows an invulnerable mind that the story comes to its end when he has sustaining, cheering, uplifting, and exhilarating effect upon us. और ये हमें एक अनवल्नरेबल माइंड और स्टोरी जो है इसके एंड पे उस वक्त आती है which has a sustaining, cheering, uplifting and exhilarating effect upon us.
कि इसका एक चीयरिंग और जो है एक्सिलरेटिंग इफेक्ट हमारे ऊपर होता है. दैट इज द एंड ऑफ योर